নমস্কার, বাংলার বার্তা থেকে বলছি সন্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলা কি হারিয়েছে? গত এক বছরের এই বিশ্লেষণটা করতে গিয়ে আমরা বারবার ফিরে আসি বাংলা স্বেচ্ছায় কি হারিয়েছে সেটা বলতে গিয়ে আজকে আপনাদের একটা ভিডিও দেখাবো, যে ভিডিওটা কানপুরে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে নিয়ে সম্প্রতি অর্থাৎ গতকাল একটা উদ্বোধন করলেন মেট্রো রেলওয়ে, কানপুর মেট্রো রেলওয়ে। এবং সেই কানপুর মেট্রো রেলের কাহিনীটা বলার আগে আমাদের খালি বারবার মনে হচ্ছিল, এই পশ্চিমবঙ্গে যদি পরিবর্তনের সরকারটা আসতো, এই পশ্চিমবঙ্গ কিন্তু এই গতির সঙ্গে বাংলার চেহারার উন্নয়নটা, ইনফ্রাস্ট্রাকচারের ডেভেলপমেন্টটা, শিল্পের উন্নয়নটা, কৃষির উন্নয়নটা, বেকারত্ব মোচন থেকে শুরু করে সমস্ত ক্ষেত্রে কিন্তু একটা ট্রানজিশনাল ফেজে চলে যেতে পারত বাংলায়। এখন বাংলা স্বেচ্ছায় ঢুকলো না, বাংলার মানুষ ভাতা ভিক্ষা 500 টাকায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে, ফলে স্বাভাবিকভাবে বাঙালির সেই ইচ্ছেটা নেই। আজকে ভিডিওটা পুরোটা দেখছিলাম আর ভাবছিলাম, এই গতিটাই কিন্তু বাংলা পেতে পারত যা উত্তরপ্রদেশ পেল। সেখানে যোগী আদিত্যনাথের সরকারের সঙ্গে নরেন্দ্র মোদীর সরকারের একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের ফসল পাচ্ছে কিন্তু তিল তিল করে উত্তরপ্রদেশ। কানপুরে যে মেট্রো রেলটা উদ্বোধন হলো, সেটা কানপুর আইআইটি থেকে মতিঝিলের 9 কিলোমিটার, কানপুর আইআইটি থেকে মতিঝিলের 9 কিলোমিটারের মেট্রো রেলের দ্বারোদ্ঘাটন করলেন, উদ্বোধন করলেন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নিজে এসে। ঠিক দু বছর আগে 15ই নভেম্বর 2019 সেখানে যোগী আদিত্যনাথ কানপুর মেট্রোর উদ্বোধন করেছেন, শিলান্যাস করেছিলেন, কাজ শুরু হয়েছিল। ঠিক দু বছরের মধ্যে মেট্রো রেলের 9 কিলোমিটার পথ শুরু হওয়ার পর শেষ পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদী সেখানে গিয়ে দ্বারোদ্ঘাটন করলেন। এবং শুধু তাই নয়, সবথেকে বড় কথা হচ্ছে, শুধু কানপুর মেট্রো বলে না, একটা উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে জাতীয় ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্টটা হচ্ছে, আপনাদের কিছুদিন আগে আমরা দেখিয়েছি 324 কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ের উদ্বোধন করেছেন, এবং যে কাজটা 3 বছরে যোগী আদিত্যনাথ শেষ করেছেন সম্পূর্ণ রাজ্য সরকারের খরচে। প্রায় 22,000 কোটি টাকা খরচা করেছেন পূর্বাঞ্চল এক্সপ্রেসওয়ে, যেটা গোরখপুর থেকে শুরু করে লখনৌ পর্যন্ত লিঙ্ক আপ হয়েছে এবং পরবর্তীকালে পাটনার সঙ্গে লিঙ্ক হয়ে যাচ্ছে আর কিছুদিনের মধ্যে। ফলে স্বাভাবিকভাবে সেই পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়ে উত্তরপ্রদেশ কিন্তু প্রত্যেকটা মিনিটে ডিভিডেন্ডটা পাচ্ছে, পরিবর্তনের ফসলটা পাচ্ছে। অর্থাৎ সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের একটা অদ্ভুত ভালো সম্পর্ক থাকার ফলে উত্তরপ্রদেশ যে বেনিফিটটা পাচ্ছে সেটা বাংলা পেতে পারতো না। 2021-এ যদি পরিবর্তনটা আসতো, বাংলা পেতে পারতো না। আপনার ভিডিওটা দেখুন, আপনাদের দেখাবো যেখানে দাঁড়িয়ে নরেন্দ্র মোদী গেছেন উত্তরপ্রদেশে কানপুরে মাত্র 2 বছরের মধ্যে কমপ্লিট হওয়ার 9 কিলোমিটারের মেট্রো রেলের পুরো প্রজেক্টটাকে কমপ্লিট করে যাত্রা শুরু করে দিলেন। আবার বলছি, 2019-এর 15ই নভেম্বর যোগী আদিত্যনাথ গিয়ে সেখানে শিলান্যাস করেছিলেন মেট্রো রেলের। তারপর 2021-এর 10ই নভেম্বর তার যাত্রা শুরু, অর্থাৎ এক্সপেরিমেন্টাল যে ট্রাভেলিংটা সেটা করেছিলেন যোগী আদিত্যনাথ 10ই নভেম্বর 2021। ঠিক 2 বছরের, মানে 15ই নভেম্বর শুরু হয়েছিল 2019, 10ই নভেম্বর নিজে মেট্রোতে করে ট্রাভেল করে তার একটা এক্সপেরিমেন্টাল জার্নি শুরু করে দিয়েছেন যোগী আদিত্যনাথ 2 বছর কমপ্লিট হওয়ার আগেই। আর তারপর এই ডিসেম্বরের একদম শেষ সপ্তাহে এসে নরেন্দ্র মোদী কিন্তু সেখানে দ্বারোদ্ঘাটন করলেন কানপুরের মেট্রোর। বদলে গেল শুধু কানপুর নয়, সারা ভারতবর্ষ কিন্তু এভাবে বদলাচ্ছে। যখন নরেন্দ্র মোদী 2014 সালে ভারতবর্ষের সরকারের দায়িত্ব নেন, কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব নেন, এই ভারতবর্ষে তখন 5টা মাত্র শহরে মেট্রো রেল ছিল, 5টা মাত্র শহরে মেট্রো রেল ছিল। আর ঠিক 7 বছরের মাথায় 2014 থেকে 2021 এই ভারতবর্ষে 14টা শহরে মেট্রো রেল রয়েছে, মাফ করবেন 18টা শহরে মেট্রো রেল রয়েছে। এবং 2025-এর মধ্যে 25টা শহর ভারতবর্ষের মেট্রো রেল পাবে। কানপুরও পেল, কানপুরের 9 কিলোমিটার যাত্রাপথ ঠিক 2 বছরে শেষ করে দেখালো মেট্রো রেল কর্পোরেশন সেখানকার। এবং যোগী আদিত্যনাথের সরকার প্রত্যেকটা মিনিটে মিনিটে কীভাবে সাহায্য করেছে, না হলে 2 বছরে কখনো 9 কিলোমিটারের মেট্রো রেলের এই পুরো জার্নিটা কমপ্লিট হতে পারত না। যেটা শুরু করেছিলেন 2019-এর, আবারও বলছি 15ই নভেম্বর,
শেষ করলেন 9 কিলোমিটার এই পথ কানপুর আইআইটি থেকে মতিঝিল মাত্র 2 বছরের মধ্যে যোগী আদিত্যনাথের সাহায্যে নরেন্দ্র মোদী সরকার কমপ্লিট করে কানপুরকে যে সেরা উপহারটা দিলেন সেই উপহার তো এই বাংলায় পেতে পারত। বাংলায় মেট্রো রেলের সম্প্রসারণটা কোথায় বলুন তো? কিছু করতে গেলেই সেখানে কোনো না কোনো জমি জট, রাজ্য সরকারি অসহযোগিতা, আন্দোলন, মিটিং, মিছিল করতে করতে এই বাংলা একদম শেষ পথে চলে গেছে। সেই কবে 74 সালে মেট্রো রেলের জার্নি শুরু হয়েছিল, আজও মেট্রো রেলের সম্প্রসারণ হতে পারতো না দুর্গাপুর পর্যন্ত, হতে পারতো না আসানসোল পর্যন্ত, উত্তরবঙ্গ পর্যন্ত, উত্তরবঙ্গ পেতে পারতো না আলাদা মেট্রো রেল। এন্টায়ার 24 পরগনার সঙ্গে হাওড়া হুগলিকে রিলেট করা যেত না মেট্রো রেলকে। সম্ভব হতো যদি একটা সরকার থাকতো, যে সরকারের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ ভালোবাসার সম্পর্ক থাকতো। প্রতি মিনিটে ঝগড়া করা, প্রতি মিনিটে অশান্তি করা, প্রতি মিনিটে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে সংঘাতে যাওয়ার ফলে শেষ পর্যন্ত কে ক্ষতিগ্রস্ত হলো? ভিডিওটা দেখুন, কানপুরে ভিডিওটা দেখছিলাম আর ভাবছিলাম এই বাংলাও কিন্তু এই সুযোগটা পেতে পারতো। স্বেচ্ছায় হারিয়েছে 2021-এ। উত্তরপ্রদেশ জানিয়ে নিয়েছে, কি নিচ্ছে না উত্তরপ্রদেশ বলুন তো? 324 কিলোমিটার এক্সপ্রেসওয়ে রাজ্য সরকার নিজের খরচে, সেখানে যোগী আদিত্যনাথ তাকে কখনো ইনভেস্ট করতে হয় না 500 টাকার ভাতায়। তিনি ইনভেস্ট করছেন 22,000 কোটি টাকা 324 কিলোমিটার গোরখপুর থেকে লখনৌকে লিঙ্ক করে দিয়ে পাটনার সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছেন, ওদিকে দিল্লির সঙ্গে যুক্ত করে দিচ্ছেন। এন্টার উত্তরপ্রদেশের ব্যবসা, কৃষি, মানুষের জীবনযাত্রা সমস্ত কিছুকে সড়ক পথে জুড়ে দিচ্ছেন যোগী আদিত্যনাথ। যেখানে টাকাটা ইনভেস্ট করা দরকার যোগীজি সেটা বুঝেছেন। এই বাংলার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝলেন না কেন? তিনি মনে করেন মা বোনেদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে 500 টাকা দেওয়াটাই সরকারের একমাত্র কাজ। ফলে তার যা রেজাল্ট হওয়া তাই হচ্ছে বাংলায়। কিন্তু সারা ভারতবর্ষ কিন্তু এগোচ্ছে। আবার বলছি, আমরা বারবার আপনাদের কাছে বাংলার বার্তায় ফিরে আসি, সারা ভারতবর্ষ কিন্তু এগোচ্ছে, বাংলা পেছনের দিকে এগোচ্ছে। যে কোনো বাসে উঠলে যেমন আপনি পেছনের দিকে এগোন, বাংলা কিন্তু সেইভাবে এগোচ্ছে। আর সারা ভারতবর্ষ কীভাবে এগোচ্ছে? কানপুরের এই ভিডিওটা দেখুন, যেখানে নরেন্দ্র মোদী যোগী আদিত্যনাথকে সঙ্গে নিয়ে কিভাবে একটা কানপুর শহরকে একটা সেরা উপহার দিয়ে গেলেন এই বছর শেষে। একটা অনুরোধ শেষ করার আগে, পুরো ভিডিওটা একটু সময় করে দেখবেন, না তাহলে বুঝবেন বাংলা কিভাবে পেছন দিকে এগোচ্ছে আর ঠিক খুব কাছাকাছি রাজ্য উত্তরপ্রদেশ কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। দেখুন সেই ভিডিও। आज मंगलवार है और पनकी वाले हनुमान जी के आशीर्वाद से आज यूपी के विकास में एक और सुनहरा अध्याय जुड़ रहा है। आज कानपुर को मेट्रो कनेक्टिविटी मिली है, साथ ही बिना रिफाइनरी से भी कानपुर अब कनेक्ट हो गया है। इससे कानपुर के साथ साथ यूपी के अनेकों जिलों में पेट्रोलियम उत्पाद अब और आसानी से सुलभ होंगे। हम दोनों प्रोजेक्ट्स के लिए आप सबको, पूरे उत्तर प्रदेश को बहुत बहुत बधाई। आप सबके बीच आने से पहले आईआईटी कानपुर में मेरा कार्यक्रम था। मैं पहली बार मेट्रो का सफर करने पर कानपुर वासियों के मनोभाव, उनकी उमंग उत्साह का साक्षी बनना चाहता था और इसलिए मैंने मेट्रो से सफर करना तय किया। ये मेरे लिए वाकई एक यादगार अनुभव रहा है। साथियों, यूपी में पहले जिन लोगों ने सरकार चलाई उन्होंने समय की अहमियत कभी नहीं समझी। 21वीं सदी के जिस कालखंड में यूपी को तेज गति से प्रगति करनी थी, उस अमूल्य समय को, उस अहम अवसर को पहले की सरकारों ने गंवा दिया।
उनकी प्राथमिकताओं में यूपी का विकास नहीं था। उनकी प्रतिबद्धता यूपी के लोगों के लिए नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में जो डबल इंजन की सरकार चल रही है, वो बीते कालखंड में समय का जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में भी जुटी है। हम डबल स्पीड से काम कर रहे हैं। आज देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा यूपी में बन रहा है। आज देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यूपी में बन रहा है। आज देश का पहला रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यूपी में बन रहा है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का हब भी यूपी होने वाला है। जिस यूपी को कभी अवैध हथियारों वाली गैंग के लिए बदनाम किया गया था, वही उत्तर प्रदेश देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस कॉरिडोर बना रहा है। साथियों, इसीलिए यूपी के लोग कह रहे हैं फर्क साफ है। ये फर्क सिर्फ योजनाओं परियोजनाओं का ही नहीं, बल्कि काम करने के तरीके का भी है। डबल इंजन की सरकार जिस काम को शुरू करती है उसे पूरा करने के लिए भी हम दिन रात एक कर देते हैं। कानपुर मेट्रो के निर्माण को ये काम हमारी सरकार में शुरू हुआ और हमारी ही सरकार इसका लोकार्पण भी कर रही है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया। हमारी ही सरकार ने इसका काम पूरा किया। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का शिलान्यास हमारी सरकार ने किया और उसे पूरा करके जनता को समर्पित करने का काम भी हमने ही किया। मैं आपको ऐसी अनेकों परियोजनाएं गिना सकता हूं, यानी पूरब हो या पश्चिम या फिर हमारा ये क्षेत्र, यूपी में हर परियोजना को समय पर पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि जब योजना समय पर पूरी होती है तो देश के पैसे का सही इस्तेमाल होता है, देश के लोगों को इसका लाभ मिलता है। आप मुझे बताइए, ट्रैफिक जाम को लेकर कानपुर के लोगों की शिकायत बरसों से रही है कि नहीं रही है? आपका कितना समय इसमें बर्बाद होता था? आपका कितना पैसा बर्बाद होता था? अब आज पहले फेज की 9 किलोमीटर लाइन, ये लाइन शुरू होने से इन शिकायतों के दूर होने की एक शुरुआत हुई है। कोरोना की मुश्किल चुनौतियों के बावजूद 2 साल के भीतर ही ये सेक्शन शुरू होना अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। साथियों, आजादी के बाद दशकों तक हमारे देश में एक सोच रही कि जो भी कुछ नया होगा, अच्छा होगा, वो 3-4 बड़े शहरों में ही होगा। देश के बड़े मेट्रो शहरों के अलावा जो शहर थे उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया गया। इन शहरों में रहने वाले लोगों की कितनी बड़ी ताकत है, उन्हें सुविधाएं देना कितना जरूरी है, ये पहले सरकार चलाने वाले कभी नहीं समझ पाए। इन शहरों की आकांक्षाओं को, इनमें रहने वाले करोड़ों लोगों की आकांक्षाओं पर पहले जो सरकार में थे उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। जो लोग अभी माहौल तानने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी नियति नहीं थी, विकास की कोई नियति नहीं थी। अब हमारी सरकार देश के ऐसे अहम शहरों के विकास को भी प्राथमिकता दे रही है। इन शहरों के लिए कनेक्टिविटी अच्छी हो, वहां उच्च शिक्षा के अच्छे संस्थान हो, बिजली की दिक्कत न हो, पानी की दिक्कत न हो, सीवेज सिस्टम आधुनिक हो, इन सभी पर काम किया जा रहा है।
अगर मैं मेट्रो की ही बात करूं तो कानपुर मेट्रो के पहले चरण का आज लोकार्पण हुआ है। आगरा और मेरठ मेट्रो पर तेजी से काम चल रहा है। कई अन्य शहरों में भी मेट्रो प्रस्तावित है। लखनऊ, नोएडा और गाजियाबाद में मेट्रो का निरंतर विस्तार किया जा रहा है। जिस स्पीड से यूपी में मेट्रो का काम हो रहा है वो अभूतपूर्व है। साथियों, मैं जो आंकड़े दे रहा हूं वो आंकड़े जरा ध्यान से सुनिएगा ना? ध्यान से सुनेंगे ना? देखिए, सुनिए। साल 2014 से पहले यूपी में जितनी मेट्रो चलती थी उसकी कुल लंबाई थी 9 किलोमीटर। साल 2014 से 2017 के बीच मेट्रो की लंबाई बढ़कर हुई कुल 18 किलोमीटर। आज कानपुर मेट्रो को मिला दें तो यूपी में मेट्रो की लंबाई अब 90 किलोमीटर से ज्यादा हो चुकी है। कहां 9 किलोमीटर, कहां 90 किलोमीटर। पहले की सरकार कैसे काम रही थी, आज योगी जी सरकार कैसे काम कर रही है, तभी तो यूपी कहता है फर्क साफ है। साथियों, 2014 के पहले पूरे देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी। यानी मेट्रो रेल सिर्फ मेट्रो कहे जाने वाले शहरों में ही थी। आज अकेले यूपी के 5 शहरों में मेट्रो चल रही है। आज देश के 27 शहरों में मेट्रो पर काम चल रहा है। इन शहरों में रहने वाले गरीब परिवारों, मिडिल क्लास परिवारों, उनको आज मेट्रो रेल की वो सुविधा मिल रही है जो मेट्रो शहरों में उपलब्ध होती थी। शहरी गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए भी जो प्रयास किए गए हैं, उनसे टियर 2, टियर 3 शहरों में युवाओं का आत्मविश्वास बढ़ा है। यूपी में तो डबल इंजन की सरकार बनने के बाद इसमें बहुत तेजी आई है। साथियों, कोई भी देश हो या राज्य, असंतुलित विकास के साथ वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। दशकों तक हमारे देश में यह स्थिति रही कि एक हिस्सा का तो विकास हुआ, दूसरा पीछे ही छूट गया। राज्यों के स्तर पर, समाज के स्तर पर इस असमानता को दूर करना उतना ही जरूरी है। इसलिए हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर काम कर रही है। समाज के हर वर्ग, दलित, शोषित, पीड़ित, वंचित, पिछड़े, आदिवासी, सभी को हमारी सरकार की योजनाओं उससे बराबर लाभ उनको मिल रहा है। हमारी सरकार उन लोगों पर विशेष ध्यान दे रही है जिन्हें पहले कभी पूछा नहीं गया, जिन पर पहले कभी ध्यान नहीं दिया गया। साथियों, शहर में रहने वाले गरीबों को भी पहले की सरकारों ने बहुत नजरअंदाज किया है। ऐसे शहरी गरीबों के लिए आज पहली बार हमारी सरकार पूरी ईमानदारी से काम कर रही है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। 2017 से पहले के 10 वर्षों के दौरान यूपी में शहरी गरीबों के लिए सिर्फ 2.5 लाख पक्के मकान ही बन पाए थे। बीते 4.5 साल में यूपी सरकार ने शहरी गरीबों के लिए 17 लाख से ज्यादा घर स्वीकृत हुए हैं। इनमें से 9.5 लाख बन भी चुके हैं और बाकियों पर तेजी से काम भी चल रहा है। भाई और बहनों, हमारे गांवों से बहुत से साथी शहरों में काम करने आते हैं। इनमें से बहुत से लोग शहरों में आकर रेहड़ी, ठेला, पटरी पर सामान बेचकर अपना गुजर बसर करते हैं। आज पहली बार हमारी ही सरकार ने इन लोगों की सुध ली है। इन्हें बैंकों से आसानी से मदद मिले,
ये लोग भी डिजिटल लेन देन करें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पीएम स्वनिधि योजना का लाभ यहां कानपुर के भी अनेकों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को हुआ है। यूपी में स्वनिधि योजना के तहत 7 लाख से अधिक साथियों को 700 करोड़ रुपए से अधिक दिया जा चुका है। भाई और बहनों, जनता जनार्दन की आवश्यकताओं को समझना, उसकी सेवा करना हम सभी का दायित्व है। डबल इंजन की सरकार यूपी की जरूरतों को समझते हुए दमदार काम कर रही है। यूपी के करोड़ों घरों में पहले पाइप से पानी नहीं पहुंचता था, आज हम घर घर जल मिशन से यूपी के हर घर तक साफ पानी पहुंचाने में जुटे हैं। कोरोना के इस कठिन काल में यूपी के 15 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त राशन का इंतजाम हमारी ही सरकार ने किया है। साथियों, जो लोग पहले सरकार में थे वो इस मानसिकता के साथ सरकार चलाते थे कि 5 साल के लिए लॉटरी लगी है, जितना हो सके यूपी को लूटते चलो, लूट लो। आपने खुद देखा है कि यूपी में पहले की सरकारें जो परियोजनाएं शुरू करती थी उनमें कैसे हजारों करोड़ के घोटाले हो जाता था। इन लोगों ने कभी यूपी के लिए बड़े लक्ष्यों पर काम नहीं किया, बड़े विजन के साथ काम नहीं किया। इन्होंने खुद को कभी यूपी की जनता के लिए जवाबदेह माना ही नहीं। आज डबल इंजन की सरकार पूरी ईमानदारी से, पूरी जवाबदेही के साथ यूपी को विकास की नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार बड़े लक्ष्य तय करना और उन्हें पूरा करना जानती है। कौन सोच सकता था कि यूपी में बिजली के उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन तक में सुधार हो सकता है। बिजली क्यों गई, लोग ये नहीं सोचते थे। उन्हें पता ही था कि घंटों कटौती होनी है। उनकी तसल्ली इसी में हो जाती थी कि बगल वाले के यहां भी बिजली गई है या नहीं है। साथियों, कौन सोच सकता था कि गंगा जी में गिरने वाला सीसामऊ जैसा विशाल विकराल नाला भी एक दिन बंद हो सकता है। लेकिन ये काम हमारी डबल इंजन सरकार ने करके दिखाया है। बीपीसीएल के पनकी कानपुर डिपो की क्षमता को 4 गुना से अधिक बढ़ाने से भी कानपुर को बहुत राहत मिलेगी। भाई और बहनों, कनेक्टिविटी और कम्युनिकेशन से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ गैस और पेट्रोलियम पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हुआ है उसका भी यूपी को बहुत लाभ हुआ है। 2014 तक देश में सिर्फ 14 करोड़ एलपीजी गैस कनेक्शन थे, आज 30 करोड़ से ज्यादा गैस कनेक्शन है। अकेले यूपी में ही लगभग 1 करोड़ 7 लाख गरीब परिवारों को नए एलपीजी गैस कनेक्शन दिए गए हैं। पाइप से सस्ती गैस के कनेक्शन भी 7 सालों में 9 गुना हो चुके हैं। इसलिए ये हो पा रहा है क्योंकि बीते सालों में पेट्रोलियम नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार किया गया है। बिना पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन इस नेटवर्क को और सशक्त करेगी। अब बिना रिफाइनरी से पेट्रोल डीजल जैसे उत्पादों के लिए कानपुर सहित यूपी के अनेक जिलों को ट्रकों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। इससे यूपी में विकास के इंजन को बिना रुके ऊर्जा मिलती रहेगी। साथियों, किसी भी राज्य में निवेश के लिए, उद्योगों के लिए, फलने फूलने के लिए सबसे जरूरी है कानून व्यवस्था का राज। यूपी में पहले जो सरकारें रही उन्होंने माफियावाद का पेड़ इतना फैलाया कि उसकी छांव में सारे उद्योग धंधे चौपट हो गए। अब योगी जी की सरकार कानून व्यवस्था का राज वापस लाई है, इसलिए यूपी में अब निवेश भी बढ़ रहा है और अपराधी अपनी जमानत
खुद रद्द करवाकर जेल जा रहे हैं। डबल इंजन की सरकार अब एक बार यूपी में औद्योगिक कल्चर को बढ़ावा दे रही है। यहां कानपुर में मेगा लेदर क्लस्टर को मंजूरी दी जा चुकी है। यहां के युवाओं का कौशल विकास करने के लिए फजलगंज में टेक्नोलॉजी सेंटर की स्थापना हुई है। डिफेंस कॉरिडोर हो या फिर एक जनपद एक उत्पाद योजना, इनका लाभ कानपुर के हमारे उद्यमी साथियों को भी मिलेगा होगा। भाई और बहनों, जिन दलों की आर्थिक नीति ही भ्रष्टाचार हो, जिनकी नीति बाहुबलियों का आदर सत्कार हो, वो उत्तर प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। इसलिए इनको हर उस कदम से समस्या होती है जिससे समाज को मजबूती मिलती है, समाज का सशक्तिकरण होता है। इसलिए महिला सशक्तिकरण के लिए उठाए गए कदमों का भी ये विरोध करते हैं। चाहे 3 तलाक के विरुद्ध सख्त कानून हो या फिर लड़के और लड़कियों की शादी की उम्र को बराबर करने का विषय, ये सिर्फ विरोध ही करते रहते हैं। हाँ, योगी जी की सरकार के काम को देखकर ये लोग ये जरूर कहते हैं कि ये तो हमने किया था, ये तो हमने किया था। मैं सोच रहा था कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं। 2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। यूपी के लोग सब देख रहे हैं, सब समझ रहे हैं। इसलिए वो यूपी का विकास करने वालों के साथ है, यूपी को नई ऊंचाई पर पहुंचाने वालों के साथ है। भाइयों बहनों, आज इतनी बड़ी सौगात आपके चरणों में सुपुर्द करते समय अनेक अनेक प्रकार की खुशियों से भरा हुआ ये वातावरण, आज का ये महत्वपूर्ण अवसर, एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद। देश की तरक्की के लिए जरूरी है विकास की तेज रफ्तार। विकास की इसी श्रृंखला में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में वर्ष 2014 से देश में मेट्रो रेल सेवाओं का विस्तार तीव्र गति से हो रहा है। प्रधानमंत्री की ईज ऑफ लिविंग संकल्पना के तहत शहरी जीवन की गुणवत्ता सुधारने और सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को बेहतर करने और प्रदूषण मुक्त यात्रा के साधन के तौर पर मेट्रो की परियोजनाओं को गति दी गई। साल 2014 में जब हमारी सरकार बनी, उस समय सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो रेल थी। आज 18 शहरों में मेट्रो रेल की सेवा है। वर्ष 2025 तक हम इसे 25 से ज्यादा शहरों तक विस्तार देने वाले हैं। वर्ष 2014 के पहले जहां देश के सिर्फ 5 शहरों में मेट्रो की सुविधा थी, तो वहीं आज 18 शहरों में मेट्रो का विस्तार हो चुका है। केंद्र और उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाले राज्य उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017 के बाद से देश के किसी अन्य राज्य की तुलना में सबसे ज्यादा 5 शहरों में मेट्रो परियोजनाएं आगे बढ़ी। बीते 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण शहरों लखनऊ,
गाजियाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में 83 किलोमीटर मेट्रो के संचालन के आरंभ के बाद कानपुर और आगरा शहरों के साथ मेरठ को राजधानी दिल्ली से जोड़ने वाली RRTS परियोजना के तहत 131 किलोमीटर लंबे नए कॉरिडोर्स का निर्माण कार्य तीव्र गति से जारी है। कानपुर में 15 नवंबर 2019 को मेट्रो रेल परियोजना के निर्माण कार्य का शुभारंभ हुआ। इसके बाद से ही IIT कानपुर से मोती झील के बीच 9 किलोमीटर लंबे प्रायोरिटी कॉरिडोर पर अत्यंत तीव्र गति से निर्माण कार्य हुआ। 2 साल से भी कम समय में 10 नवंबर 2021 को माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में मेट्रो ट्रेन का ट्रायल हुआ। कोविड की 2 लहरों की गंभीर चुनौती के बीच भी काम की गति को उत्तर प्रदेश मेट्रो की टीम ने बनाए रखा। प्रायोरिटी कॉरिडोर के सभी 9 स्टेशन इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्लैटिनम रेटिंग से प्रमाणित हैं। गुरुदेव चौराहे पर स्थित कानपुर मेट्रो डिपो अत्याधुनिक और विश्व स्तरीय है। कानपुर मेट्रो परियोजना के अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से युक्त 3 कोच वाली मेट्रो ट्रेन मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत गुजरात के सावली में निर्मित है। कानपुर वासियों के लिए आज ऐतिहासिक क्षण है जब कानपुर मेट्रो का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा रहा है। कानपुर में मेट्रो रेल शुरू होने से शहरी परिवहन न सिर्फ सुगम और सुरक्षित होगा, बल्कि शहर के प्रदूषण के स्तर में भी कमी आएगी। कानपुर वासियों की जीवन शैली में बदलाव होगा, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी आएगी, महिलाओं, बच्चों और दिव्यांगजन को यातायात का सुरक्षित साधन प्राप्त होगा। 2024 तक दोनों कॉरिडोर्स के निर्माण के बाद लगभग 9.4 लाख कानपुर वासियों के मेट्रो के सफर का आनंद लेने का अनुमान है। सबसे ज्यादा परियोजनाओं के साथ उत्तर प्रदेश मेट्रो के मामले में सबसे अग्रणी राज्यों में शामिल होकर मेट्रो प्रदेश बनने की ओर अग्रसर है। सोच ईमानदार, काम दमदार।